Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to cover up case scenario number 17 and 18. In case you are new here, my name is Anshita and we have covered a lot of case scenarios and MCQs till date. In case you have missed out those videos, please check out the description box below. Also we have covered all the case scenarios and MCQs of audit. So in case you wish to see those videos, please check out the description box below. So let's begin with case scenario number 17 for today. ABC Limited was incorporated under the Indian Companies Act. So it is a limited company, which means public company hai, public limited company. The issued, subscribed and paid up equity share capital of the company as on 31st March 2020 is 25 crore rupees consisting of 25 crore equity shares. So okay. So इसका मतलब है 1 रुपये का एक शेयर है आपका, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है. तो अभी तक पता चल गया ये पब्लिक कंपनी है. ओके. कितने शेयर्स हैं टोटल? 25 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 25 करोड़ इसकी पेड अप इशूड और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है, ठीक है. दीज आर लिस्टेड ऑन द BSE एंड NSE ऑफ इंडिया. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी का केस है, ठीक है. The company filed a scheme of arrangement before NCLT for issue of secured non-convertible redeemable fully paid up debentures by way of bonus to its members as on the record date out of the accumulated profits lying to the credit of profit and loss account under sections 230 to 232 and other applicable provisions of Companies Act 2013. The scheme of arrangement is fully formulated for issue and allotment by way of bonus. One fully paid up debenture of face value 30 each by utilizing its accumulated profits for every one fully paid up equity share of face value 1 each held by total 125,000 members as on the record date. ठीक है. तो टोटल कितने मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर? 1,25,000 मेंबर्स हैं. दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि जो आपके पास 25 करोड़ शेयर्स है ना, वो 25 करोड़ शेयर्स के बदले आपको 25 करोड़ फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स इशू होंगे और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 30 रुपीज़ है, जिसका मतलब हो गया कि आपको 25 करोड़ इंटू 30 के टोटल डिबेंचर्स इशू होने वाले हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द फेस वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स, ठीक है. नाउ pursuant to the order dated 10th of April 2020 passed by the Honorable National Company Law Tribunal, a meeting of the equity shareholders of the company was convened at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700027 on Monday 27th of May 2020 at 1 p.m. In accordance with the provisions of section 230 to 232 compromise amalgamation and arrangements वाला chapter आ गया of the Companies Act 2013, the scheme was agreed to by a majority persons representing 3/4 in value of the equity shareholders of the company voting through postal ballot or remote e-voting and ballot polling paper at venue of the meeting. तो इसको पढ़ के आपको याद आ गया होगा सेक्शन 230. सेक्शन 230 में मेंशन्ड है कि मेजॉरिटी भी होनी चाहिए और वो मेजॉरिटी रिप्रेजेंट करनी चाहिए 3/4 इन वैल्यू ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स. तो यहाँ पर अगर हम देखें 125,000 मेंबर्स थे, तो 125,000 मेंबर्स में से जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की होगी वो चेक करना पड़ेगा. फिर जितनों ने मीटिंग अटेंड करी और कितनों ने वोट किया वो चेक करना पड़ेगा. फिर उनको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो मोर देन 50% है या नहीं. और फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो मोर देन 50% वाले लोग हैं ये 3/4 वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग को रिप्रेजेंट भी करते हैं या नहीं. ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. What is the amount which the company intends to utilize out of accumulated profits for the issue of bonus debentures? तो ये हमने करा था 25 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हर किसी को एक डिबेंचर मिलेगा एंड द वैल्यू इज ऑफ 30 रुपीज़ विच मीन्स 750 करोड़ का अमाउंट आपका यूटिलाइज हो जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज टू बी अग्रीड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. अच्छा, अब अग्री कौन से रेजोल्यूशन से करना पड़ेगा, कौन से रेजोल्यूशन से करेंगे? देखो इस केस में आपको पता होगा
सेक्शन 230 कहता है कि आपको मेजॉरिटी लोगों को कन्विंस करना है एंड दिस मेजॉरिटी शुड रिप्रेजेंट 3/4 इन वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था हमें बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सब चीज़ें नहीं है। इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग, तो मेजॉरिटी होनी चाहिए मेंबर्स की एंड दे शुड रिप्रेजेंट 3/4 इन वैल्यू ऑफ द मेंबर्स वोटिंग इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग। ये ठीक लग रहा है? द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स वोटिंग इन पर्सन और प्रॉक्सी, तो मेजॉरिटी सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, मेजॉरिटी शुड रिप्रेजेंट 3/4 इन वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी। How many equity shares are required to be held by members voting in favor of the scheme for approving the scheme? तो अगर हमसे पूछा है how many equity shares, क्या पूछा है? How many equity shares are required to be held by members? तो equity shares कितने required होंगे? तो 25 करोड़ equity shares हैं, तो 25 करोड़ का 3/4 निकालना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू में तो हमें 3/4 देखना होता है। 25 करोड़ रुपीज़ के हमारे पास शेयर कैपिटल है, उसका 3/4 इन वैल्यू चेक करना होता है। तो 3/4 ऑफ 25 कितना हो जाएगा? 18.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स और मोर। क्लियर है? यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर्स मस्ट अग्री टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इफ 40% ऑफ द टोटल मेंबर्स अटेंड द मीटिंग एंड 30% ऑफ द टोटल मेंबर्स वोट एट द मीटिंग। तो टोटल मेंबर्स हमारे पास थे 1,25,000। ये कह रहे हैं कि टोटल मेंबर्स में से, यहाँ पर ध्यान रखना वर्ड्स दे रखे हैं, टोटल मेंबर्स। पहले बोला हुआ है कि 1,25,000 में से 40% लोगों ने ही मीटिंग को अटेंड किया है। अटेंड कितने लोगों ने किया है? 40% ने। तो 1,25,000 का 40% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 50,000। 50,000 में से वो कह रहे हैं कि सिर्फ 30% आउट ऑफ द टोटल मेंबर्स ने वोट किया है। तो इसमें जो हमें 30% निकालना है, वो 30% हमें निकालना है ऑफ 1,25,000 इन लोगों ने वोट किया है मीटिंग के अंदर। तो 1,25,000 का 30% अगर हम निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 37,500। 37,500 में से कितने लोगों ने अग्री किया होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि मीटिंग आपकी, मतलब मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, बेसिकली स्कीम पास हो गई। तो ऐसा कब होगा? जब इसमें से मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% लोगों ने अग्री किया होगा। 50% ऑफ 37,500 कितना आ रहा है? 50% ऑफ 37,500 आ रहा है आपका 18,750। 18,750 प्लस 1 कर दोगे तो मोर देन 50% हो जाएगा। सो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। आई होप यू आर क्लियर विद द प्रोविजंस। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी थी। पहली चीज़ ये थी कि यहाँ पर दिया है, पूछ रहे हैं आपसे कि कितने लोगों ने अग्री किया होना चाहिए। अग्री किया होना चाहिए, इसका मतलब है कि मोर देन 50% नंबर ऑफ पीपल दे आर आस्किंग। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी थी कि जो अटेंड की है मीटिंग वो 40% ऑफ द टोटल मेंबर्स बता रहे हैं। टोटल मेंबर्स कितने थे? 125। 30% जो बता रहे हैं ना, 30% लोगों ने वोट किया, वो 30% भी टोटल मेंबर्स का बता रहे हैं, ठीक है। तो वो भी 125,000 इंटू 30% होगा एंड उसके हिसाब से यू गेट 37,500। 37,500 का 50% कैलकुलेट कर लो तो आपका आ जाएगा 18,750। लेकिन अगर 18,750 लोग वोट करके अग्री करते, वोट तो 37,500 ने किया है, पर 18,750 लोग अगर एग्री करते तो उस केस में थोड़ी ना फ़ायदा होता। फ़ायदा तब होता जब मोर देन 50% होता। तो मोर देन कब हो जाएगा? जब एक एक्स्ट्रा बंदा वोट कर देगा अग्री करने के लिए। So that is why 18,751 will be the correct answer. I hope you are clear with this. Let's move on to the next question. Question number 18. DEF Limited, ये भी क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। Was incorporated under the Companies Act 2013 on 21st of June 2013 as a public limited company. Question में भी बता दिया। The issued, subscribed and paid up equity share capital of the company as on 31st March 2020 is 30 crore rupees consisting of 30 crore equity shares of rupees 1 each. सेम लग रहा है पहले वाले क्वेश्चन जैसा। which are listed on BSE and NSE of India. तो सेम चीज़ दे रखी है, ये एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The company filed a scheme of arrangement before NCLT for the issue of secured, non-convertible, redeemable, fully paid up debentures by way of bonus
to its members as on the record date out of the accumulated profits lying to the credit of profit and loss account under sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act 2013. तो अभी तक सेम चीज़ें लग रही हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने कवर किए हैं. The scheme of arrangement is formulated for the issue and allotment by way of bonus one fully paid up debenture of face value 20 each by utilizing its accumulated profits for every one fully paid up equity share of face value 1 held by total कितने members हैं, हाँ ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, टोटल 50,000 members हैं as on the record date. तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक इक्विटी शेयर के बदले एक फुल्ली पेड अप डिवेंचर मिलने वाला है. तो टोटल हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने दिए हुए थे, 30 करोड़ दे रखे हैं. तो टोटल 30 करोड़ का मतलब हो गया 30 करोड़ को एक मिलेगा डिवेंचर जिसकी वैल्यू कितनी है 20. इसका मतलब हो गया 600 करोड़. ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं 50,000. In respect of the said scheme, there is no arrangement with the creditors of the company. No compromise is offered under the scheme to any of the creditors of the company. The liability of the creditors under the scheme is neither being reduced nor being extinguished. Okay. Pursuant to the order passed by Honorable National Company Law Tribunal, a meeting of the equity shareholders of the company was convened at the registered office of the company in accordance with the provisions of section 230 to 232 of the Companies Act 2013. The scheme was agreed by the requisite members. requisite members का मतलब क्या हो गया, मोर देन 50% मेंबर्स का जिनकी जो होल्डिंग है वो रिप्रेजेंट करती है एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू. The order of NCLT approving the scheme of the arrangement dated 2nd of August 2020 received on 6th of August 2020 was filed with the registrar by the company. तो कितने दिनों में करना होता है वैसे, within 30 days इन्होंने. ठीक है, ओके. लेट्स सी क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिबेंचर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. तो आपसे डिबेंचर्स पूछ रहे हैं कि कितने डिबेंचर्स होने चाहिए. तो 30 करोड़ ही डिबेंचर्स होंगे जितने आपके शेयर्स थे, क्योंकि हर एक बंदे को एक एक मिल रहा है. हर एक बंदे को नहीं, हर एक इक्विटी शेयर के बदले एक एक आपको डिबेंचर मिल रहा है. तो इस केस में 30 करोड़ ही होंगे आपके डिबेंचर्स भी. चलो, व्हाट इज द अमाउंट which the company intends to utilize out of the accumulated profits for the issue of bonus shares. तो एक बोनस शेयर्स 20 का था, 30 करोड़ वो थे ही हमारे पास, तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 600 करोड़. तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी. काफ़ी इजी केस सिनारियोज हैं. व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ NCLT विद द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार को कब तक देना होता है, 30 डेज के अंदर अंदर. तो आपने यहाँ पर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, तो यहाँ पर देखें ऑर्डर कब रिसीव हुआ था, 6th of August 2020. 6th of August से 30 डेज अगर आप ऐड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा. 6th of August से 30 डेज अगर आप ऐड करोगे 5th of September. 5th of September is the correct answer. How many equity shares are required to be held by members voting in favor of the scheme for approving the scheme if all the members attend and vote at the meeting. तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 50,000. कह रहे हैं 50 के 50,000 लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया है एंड वोट किया है. तो ये बताओ कि कितने इक्विटी शेयर्स आपको चाहिए होंगे फॉर अप्रूविंग द स्कीम. तो इस केस में आपको मेंबर्स नहीं देखने हैं, आपको इसमें देखना है बेसिकली आपको वो देखना है टोटल. देखो मेंबर्स भी ज़रूरी है, अगर मेंबर्स नहीं बताते तो हमें पता नहीं चलता कितने इक्विटी शेयर्स आपके उस टाइम प्रेजेंट थे. तो आपके इक्विटी शेयर्स प्रेजेंट थे 30 करोड़ इंटू 3/4 इन वैल्यू देखना होता. ठीक है, तो 3/4 इन वैल्यू का मतलब हो गया 30 करोड़ का 3/4. 30 करोड़ का 3/4 कितना होता है, 22.5. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी. एटलीस्ट 22.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, या उससे ज़्यादा है तो भी चलेगा. 3/4 इन वैल्यू देखना होता है ना हमें, तो 22.5 करोड़. चलो, let's cover up the last MCQ. How many members must agree to the scheme of arrangement if 50% of the total members of the company attend and 40% of the total members vote at the meeting? So there are total 50,000 members. 50,000 में से 50% of the total, 50% of 50,000 is 25K. 25K ने अटेंड की है मीटिंग और 50,000 के 40% ने वोट किया है, विच मीन्स
20K ने वोटिंग करी है। और 20K में से कितने लोग अग्री करेंगे तो सैंक्शन हो जाएगी स्कीम। तो एट मोर देन 50% क्या हो जाएगा, तो 50% निकाल लो, उसमें एक जना ऐड कर दो। 50% कितना होगा, 10K प्लस 1, 10,001। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। So this was the last question of case scenario number 18. We have covered this, and yeah, thanks for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, give it a big thumbs up and share it with your friends. And if you are new here, subscribe to the channel. Let's see how many of you are participating, and how many of you are doing the questions well. If you are doing the questions, please make sure that you mark the questions which you have attempted incorrect for the first time. तभी आप उसको दोबारा रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो लास्ट में फिर से रिवाइज करना सारा कुछ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो या दैट्स अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।